Hey, welcome to our channel Talks with Tech. I'm Teresa. I'm here with my teammates Gibran, Ekta, and Himanshu. Before starting, I would like to ask you, have you ever been complimented as you are my reason to smile? Well, maybe yes, maybe no, but be it a friend, a family member, or a stranger, it definitely leaves an impression of true love. So for today's episode, we have who's an author of the book You Are My Reason to Smile, a television script writer and a storyteller who wins the heart of the people with his amazing words. Beware, his words can leave your heart fluttering. So today we have Arpit Wagheria with us. Hello, sir. Hello, hello, what's up? How are you guys? Fine, sir. Thank you for taking out time and joining with us on our show Talks with Tech, That TEC. sounds like an exciting plan already. I mean, when you guys approached me, I really wanted to come on this one, and I mean, it's always good to be in touch with readers and everyone. So I was equally excited here. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, shall we start the session? Yes, please. There is only one thing. There might be some technical glitch in between. So whenever it comes, just let me know so that I can just reset my internet and everything. Sure, sir. All right. So, the very first question is how did you start writing your own novel, and about what time did you start? During school time or graduation? So I was doing my graduation at that point of time. I mean, I just entered into my graduation at that point in time. So what Hmm. happened was, I mean, back then मैंने books पढ़ना start ही किया था. I really used to like different sort of writings. तो मुझे ये लगता था कि यार किताबें पढ़नी चाहिए और उस हिसाब से मैंने किताबें पढ़नी start की थी. And what happened was, I mean, back then when you are in college, there are so many things you want to do, right? I mean, the moment you step into the college, the first thing the guy want to do is impress a really beautiful girl over there. तो ये चीज़ मेरे भी दिमाग में थी कि मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगा और वो कहते हैं ना मेरे मेरे सपनों की गर्लफ्रेंड मुझे वहां मिलेगी वो सारी चीजें दिमाग में थी एंड somehow I mean that is the apt time जब आप पहली पहली बार किसी प्यार में पड़ रहे होते हो. So eventually I actually fell in love with a girl over there like everybody else. हर कोई उसी दौरान प्यार में पड़ता है. तो मैंने यही किया कि मैंने सोचा कि what needs to be done to impress this girl. तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे कॉलेज के अंदर बहुत अलग अलग किस्म के टैलेंटेड लड़के थे. किसी को डांस आता था, किसी को अच्छा खासा गिटार बजाना आता था, किसी को कोई स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई बास्केटबॉल के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका था और मैं था सीधा साधा सा अर्पित वगैरह जो कि हमेशा से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहा करता था. So I just thought, I mean, maybe there is something which I need to do, and I mean, I could always relate myself with reading and writing. So I mean, the love story and everything eventually happened, and I started writing it down, and I thought maybe, I mean, what if I write my own love story at first and then gift it to the girl I love, and then just tell it to her someday, hey, I'm going to get published, right? So it sounds like a lame plan, but that worked for me, and that is how I actually started writing. Oh, wonderful, sir. I mean, everyone goes through this situation, this phase. Everyone has been through one. I mean, Yeah. every boy might be like, yes, I've done this before. Yes, I agree. I agree. So, sir, a very next question is your to ask my very next question. Your very first book, I Still Think About You. When Hmm. was it published, and what was the journey like? What is was it like you went to first publish and he just published it or So not something? many people know, but I Still Think About You is practically my second book. The first one was Chocolate Sauce, Smooth, Dark, Sinful. That was the title of my novel. I mean, and that got released way back in 2012. So I Still Think About You came after 4 years. When the first novel got published, I mean, I would like to tell you the story about that. So how it happened was, I mean, as I told you that I wanted to write a story, but I mean, I didn't know anything about the publishers कि कैसे book publish होती है क्या चीज़ें होती हैं. तो randomly like any aspiring writer मैंने
सारे जितने भी उस वक्त पे राइटर्स हुआ करते थे, आई स्टार्टेड इनबॉक्सिंग दिस पीपल कि नॉवल कैसे पब्लिश की जाती है, एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इट सो दैट आई कैन एक्चुअली सी माई सेल्फ पब्लिश समडे. So I got some really informative suggestions from these people, and some of them didn't even reply because maybe because they were busy. जो भी रीजन था, so that is how I got to understand कि बुक कैसे रिलीज की जाती है. तो पहले तो अच्छे खासे 6 महीने तक रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आते रहे, एंड आई एम ग्लैड कि वो रिजेक्शंस आए, क्योंकि वो नहीं आते तो शायद मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स उस बुक के लिए डाल ही नहीं पाता. आई मीन लोग होते हैं जो पहले दूसरे तीसरे ड्राफ्ट तक पहुंच के बुक को पब्लिश करवा देते हैं. आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज वर्किंग ऑन एटलीस्ट 10th ड्राफ्ट व्हेन द डील फॉर द बुक गॉट फाइनलाइज्ड. सो चॉकलेट्स और स्मूथ डार्क सिंपल व्हिच वाज माय फर्स्ट बुक, वो ओरिजिनली मेरी 2 लाख वर्ड्स की मैन्युस्क्रिप्ट थी. 2 लाख के अंदर आजकल 4 बुक्स आ जाती हैं. तो वो करते 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 फाइनली कर्टल डाउन करके द बुक गॉट पब्लिश विद 67,000 वर्ड्स फाइनली. वो उस बुक के बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि उस पब्लिशर ने मुझे बाद में पैसे नहीं दिए फॉर माई रॉयल्टी. एंड अगेन आफ्टर दैट आई मीन आई थॉट कि मे बी इट डजंट मेक एनी सेंस टू प्रमोट द बुक जिसकी मेहनत के पैसे मुझे खुद को मिलने ही नहीं वाले हैं. सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ड्रॉप, एंड मे बी once the contract with that publisher gets over, I would like to republish it again because that is still one of my favorites. So that is how the deal behind the first book happened. Oh, that's quite, मतलब किसी को नहीं पता था इस चीज के बारे में से. This was हाँ, completely new to us. Yes. So can we read that story somewhere? Yeah, I mean, you can still get it on Amazon. You can still get it at some of the bookstores, but Amazon, Flipkart is still there. You can get it for sure. Okay, sir. Thank you, 100%. sir. We'll definitely give it a read since it's your very first book. Yes. Please do that. I mean, you can get it anywhere you want. Thank you, sir, for telling us about that very first book that turned into a havoc. First books are always special, यार, क्योंकि आप I mean, कहीं ना कहीं मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जितने इनोसेंस के साथ में आप आपकी पहली बुक को लिखते हो ना, शायद बाद की किसी भी बुक के अंदर उतनी इनोसेंस के साथ में नहीं लिखते हो, बिकॉज you want to give your everything to that particular book because that is your first book, that is your first ever baby, and first are always special. I mean, talk about anything, talk about first kiss, talk about the first result, talk about the first experience of driving a car, it's always special. So chocolate sauce will always be special. Okay, sir, so shall we move on to our next question? Please. Did you ever write about someone from real life or an extract from your real life which can only be understood by people who personally know you? Yeah, many a times, because I mean, I always follow one thing, कि मेरी हर बुक के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा हो जो मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, and only people who know me personally will get to understand about this. कई बार क्या होता है कि रीडर्स को लगता है कि चॉकलेट सॉस लिखी है, आई स्टिल थिंक अबाउट यू लिखी, यू आर माय रीजन टू स्माइल लिखी है. सारे रीडर्स को लगता है कि अर्पित वगेरिया की खुद की स्टोरी है. एक रीडर ने अभी, जैसे मेरी रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई थी लाइक अ ईयर बैक, लव नोज नो एलओसी, तो उसमें मुझे द स्टोरी वाज अबाउट एन इंडियन एंड अ पाकिस्तानी. सो अ रीडर ऑफ माइन एक्चुअली सेड कि सर, हैव यू, आई मीन, यू हैव बीन टू पाकिस्तान, आई डिडंट नो दैट. I said, who told you that I have been to Pakistan? So they were like, in your story it's mentioned. I said, it's not me. It's my character who has visited to Pakistan. It's not Arpit, it's Kabir. तो कई बार रीडर्स को ये चीज लगती है कि जितनी भी मैं स्टोरीज लिख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ पे इंस्पायर्ड है. तो मेरी लाइफ इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है जिसके ऊपर 5 नॉवेल्स बन सके. बट या कुछ एक सेक्शन, कुछ एक एक्सट्रैक्ट हर बुक के अंदर ऐसा रहता है जो अर्पित वगेरिया की लाइफ से इंस्पायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई रीजन टू स्माइल के अंदर कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में पर्सनली हो चुके हैं. बी माई परफेक्ट एंडिंग के अंदर कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में हो चुके हैं. बट मैं हमेशा रीडर्स को ये कहता हूँ कि स्टॉप डिफरेंशिएटिंग अबाउट व्हाट इज फिक्शन एंड व्हाट हैज हैपेंड इन रियल लाइफ. जस्ट रीड इट एज एन एक्सपीरियंस. क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया क्या चीज रियलिटी में हुई है और क्या चीजें नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग की एक्सपीरियंस खत्म करेगा. Sure, sir. It's very true, actually. So, would you like to share one of it with us? What? Sorry, I couldn't get you.
Can you share one of the incidents with us, which is in real life and in the novel? Let me talk about You Are My Reason to Smile only. If you remember the scene from the coffee shop, जहाँ पर लक्ष्य देखता है अदा को और विजय को बैठे हुए, if you have read that book, so that has actually happened in my real life. So I mean that is inspired from the real life, and You Are My Reason to Smile के अंदर ही, if you see the fight between Lakshya and his boss, जो एक कॉर्पोरेट फाइट होती है, दैट हैज हैपेंड विथ मी, दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज एक्चुअली माय फकिंग बॉस. तो अब मैं सबसे पहले जैसे ही मेरी बुक आई थी तो मैं उन्हीं को बताने के लेकर आया था कि आई मीन आई एक्चुअली गिफ्टेड इट टू हिम. I generally do not gift my books, but I gifted it to my boss, saying that ki, this is you, and you should be reading this particular chapter, and see how I have nailed you in my book. So I was really happy, and in fact, he was all smiles after that. Ki, acha, good that you got into writing and everything. So yes, these were a couple of things which has actually happened. Thank you, sir. It's quite an amazing moment to share actually. ये काफी मतलब रीड करने पे भी लग रहा था, एकदम छू गया, मतलब थैंक यू. रियलिस्टिक लग रहा था. जब रीडर्स ये बोलते हैं कि वी कुड रिलेट टू इट, वो मेरे लिए या फिर किसी भी राइटर के लिए वो सबसे बड़ा फीडबैक होता है कि यार वी कुड एक्चुअली फील दैट दिस वाज रियल. और कई बार जब रीडर्स बोलते हैं कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक कि आपने हमारी स्टोरी लिख दी है, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वन राइटर कैन हैव. Yes, sir. Yes, sir. So, what do you enjoy more, writing a television script or novels? I enjoy writing novels when I actually want to write something meaningful, something really good. I enjoy writing television when my bank balance is zero. So television scripts पैसा देती हैं, और novel writing जो है वो आपके अंदर के राइटर को जिंदा रखती है. So why I write TV and I am very blunt about it, it's because मेरा घर टेलीविजन राइटिंग से, स्क्रिप्ट राइटिंग से चलता है, और नॉवेल राइटिंग इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. आई मीन क्या होता है, कितने लोग पहले टेलीविजन और फिल्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं, देन दे स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स. आई मीन टॉक अबाउट मेनी ऑफ द एग्जांपल्स. आप एक से बढ़कर एक जितने भी राइटर टेलीविजन के हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के, आप नाम उठा के देख लीजिए, वो लोग यही करते हैं कि पहले वो उस इंडस्ट्री के थे, फिर उन्होंने नॉवेल लिखना पसंद किया. मैं पहले नॉवेल राइटर था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉवेल राइटिंग आई गॉट इनटू टेलीविजन राइटिंग. टेलीविजन राइटिंग लिखने का भी एक अपना बहुत मजा है, वो इसीलिए, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल फॉर द शो दैट यू आर राइटिंग फॉर. मेरा टेलीविजन के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, मैं टेलीविजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी लिखता हूँ. आई डू नॉट राइट सास बहू वाले सीरियल्स. आई डू नॉट राइट कि इसकी पड़ोसी का उसके पड़ोसी के साथ में चक्कर है, फिर दोनों के दोनों ने जाके भाग के कहीं शादी कर ली और पता चला वो ऑलरेडी शादीशुदा था. आई डू नॉट राइट सच काइंड ऑफ शोज फॉर टेलीविजन. आई जस्ट लाइक टू राइट कॉमेडी, जो कि आप लोग जिसको देखते हैं तो आपको हंसी आती है. और आई थिंक दैट्स व्हाई आई राइट टेलीविजन राइटिंग. अगर ये कॉमेडी लिखने का ऑप्शन टेलीविजन राइटिंग के अंदर नहीं होता तो शायद मैं नहीं लिख रहा होता. आई मीन मेरे कोई से भी शोज आप उठा के देख लोगे, मोस्टली 90-95% शोज आर बेस्ड ऑन द कॉमेडी. Yes, sir. It's very good to see कि आप एकदम different genre use कर रहे हैं. मतलब novel में you write about romance, fantasy, थोड़ा fiction, and फिर television पे एकदम comedy. मतलब reality shows में ये जरूरी होता है, ये ना रहे तो हम देखें ही ना. बिल्कुल बिल्कुल, I agree, I completely agree. So can you describe one of your typical writing day? Like you won't be writing the whole day. You might be spending some time with your family, sometime somewhere else, and मैं राइटिंग डे से बेटर है कि मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करता हूं जिस कारण से मैंने अपनी लास्ट नॉवेल लव नोज नो LOC को लिखा था. एंड आई थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. वो एक्चुअली ये था कि आई मीन ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ यू आर माई रीजन टू स्माइल, दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है प्रगति मैदान में, तो मैं वो बुक को लॉन्च करके आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ्लाइट से ट्रैवल करना थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है 6-7 घंटे उसमें भी पूरे हो रहे हैं. ट्रेन में एटलीस्ट लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. तो मैं ट्रेन का ही ट्रैवल करके जा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. तो जब मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था ट्रैवल करके, सो आई मेट अ फैमिली ओवर देयर.
और बड़ी फैमिली जो एक होती है ना, 8-10 लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो वाली फैमिली। और मैं ट्रेन में फैमिली से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, फॉर द रीज़न कि मैं कभी भी अपना खाना कैरी करके नहीं जाता। मुझे लगता है मैंने किसी फैमिली से बात की तो वो भी मुझे खाना ऑफर करेंगे, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टॉक विद दिस पीपल। तो उस दिन भी मैं उस फैमिली से बात करने लगा, एंड देयर वर 4 जनरेशंस व्हिच वर ट्रैवलिंग टुगेदर। एक देयर वाज एन ओल्डी पर्सन हु मस्ट बी क्लोज टू 1992। उनका बेटा था जो कि लगभग 65-67 के आसपास का होगा। फिर उनका बेटा था, फिर उनके बच्चे थे। सो देयर वर लाइक 4 जनरेशंस ऑल टुगेदर, जो उस वो 8-10 सीट्स के अंदर पूरी तरीके से थे। सो व्हाट हैपेंड वाज I was talking to this people and then I suddenly started talking with that oldie person. So उन्होंने मुझे एक चीज कही, बातचीत बातचीत में उन्होंने बताया दैट उनको पता चला कि मैं राइटर हूं, तो मैंने बोला मैं ये लिखता हूँ, मैं वो लिखता हूँ। वो बड़े मजाक मजाक के अंदर बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला यार हमारी भी कहानी लिखो कभी। तो मैंने सोचा मैं मतलब क्या कहानी लिखूंगा आपकी। और वो होता है ना, जैसे कि मुझे मेरी फैमिली के अंदर हर कोई बोलता है, मेरे घर में जितने मेरे रिलेटिव्स है सब बोलते हैं अरे यार हमारी स्टोरी लिखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो हर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो उनको भी लगा था। और उन्होंने कहा कि मेरी स्टोरी लिखो। मैंने बोला क्यों, आपकी क्या स्टोरी है? बोलते कि मेरा बर्थ पाकिस्तान में हुआ था और मेरी आखिरी इच्छा के ऊपर कुछ लिखो। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज एंड आई वॉन्ट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट वंस अगेन, जहां पे मेरा बचपना पूरी तरीके से बीता है। So the moment he said this line, no, I was hooked to it completely. मैंने सोचा इतनी इंटरेस्टिंग बात है। और जैसे उनका कहना हुआ, उनके जो बच्चे थे वो लाइक 65-67, और जो उनके पोते भी थे, तो देवर लाइक कि हमारे जो पापा है, हमारे जो दादा हैं, उनकी हमेशा से इच्छा रहती है कि पाकिस्तान के अपने वो वाली घर में वापस जाएं। और वापस से आई मीन ही वाज कंप्लीटली इनटू दैट ट्रिप ऑफ नॉस्टैल्जिया कि आई वांट टू लिव दैट वंस अगेन। फिर फाइनली यही हुआ कि वो बोलते कि अरे यार मर मुरा जाओगे, पाकिस्तान कौन जाता है, कौन जाना पसंद करता है? तो बोलते वो तुम्हारे लिए पाकिस्तान था है, लेकिन वो मेरे लिए अभी भी मेरा हिंदुस्तान है, क्योंकि मैं तब भी भारत में रहता था, मैं आज भी भारत में रहता हूँ। सो करो यार कुछ, वीजा वीजा का जो भी चीजें होती हैं। तो वो ये बोलते बोलते उन्होंने ये चीज बोली उनके बेटे ने कि अच्छा ये बताओ, अगर वहां पर जाते भी हो, वहां पे जाते भी हो तो कैसे पहचानोगे अपने अपनी उस घर को? तो बोलते कि अगर उस घर के अंदर पुरानी एक भी दीवार बची होगी ना, उनमें से कुछ ईंट भी पुरानी होगी ना, मैं अपने घर को पहचान जाऊंगा, भले ही कितना बदल गया हो। और मेरे उन दोस्तों से मिलूंगा। बोलते आपके दोस्त तो मर मुरा गए होंगे अभी तक। सो ही वॉज लाइक आई डोंट माइंड, आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट वंस अगेन। उनकी जिद थी और उनका दुख साफ साफ मुझे दिख रहा था। सो दैट हैपेंड ड्यूरिंग यू आर माई रीजन टू स्माइल के बुक लॉन्च के बाद। एक ईयर एग्जैक्टली बाद मैं दिल्ली वापस आया, जब बी माई परफेक्ट एंडिंग का बुक लॉन्च था, अगेन इन प्रगति मैदान वर्ल्ड बुक फेयर। आई वॉज गोइंग बैक टू मुंबई अगेन बाय दैट ट्रेन, and you would not believe that I met the same family again in that particular compartment. And that is the biggest ever coincidence happened in my life. And I said that कि मतलब मैं पहचान गया था उनको, उनको पहचानने में कुछ सेकंड्स गए, कुछ मिनट गए, लेकिन वो पहचान गए। बट देयर वाज वन पर्सन हु वाज मिसिंग एंड दैट वाज दैट दादाजी। मैंने बोला कि वो कहाँ पर है? सो उन्होंने बोला कि ही डाइड। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कुड कम अप विद वाज कि could you make his last wish fulfilled? I mean, could he visit back to Pakistan in any which way? He said no, and we regret it. So I was very touched with this. No matter how much all of us hate Pakistan, no matter how much they hate Indians, but एक चीज है, जिन लोगों के रिलेटिव्स वहां पर है, जिन लोगों की कुछ मेमोरीज उस साइड से रिलेटेड है, I mean, nobody could understand their pain. So I thought कि when the entire world is talking about India and Pakistan ka hate relationship, why not come up with something which spreads the message of love? And I was really amazed to see that कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेरल्ड, जितने भी बेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर विद द नेम ऑफ डॉन, DAWN, उन्होंने उनके फ्रंट पेज पे 50% ऑफ द स्पेस में कवर किया
Love Knows No LOC by an Indian writer Arpit Vakeria is something which every Indian and Pakistani should be reading right now. And that was not a paid promotion. That happened on its own. And आप मानेंगे नहीं, अगर मुझे एक दिन के अंदर 25 मैसेज किसी इंडियन रीडर के आते हैं ना, तो मुझे 3 से 4 मैसेजेस पाकिस्तानी रीडर्स के भी आते हैं सेइंग दैट कि वी वुड लाइक टू गेट दिस बुक, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. So yeah, that is one incident which really touched me. सर ये One तो day of गूज़बम्प्स my वाला life. इंसिडेंट था. Huh? ये गूज़बम्प्स वाला इंसिडेंट था. आई मीन I mean, ऐसा you can बहुत understand कि ही मुझे कैसा लगा होगा उस वक्त पे. एग्जैक्टली सर. मतलब ये तो मेरे को इधर पे स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है हाउ मच, मतलब कैसा आपको लगा होगा उस दिन. Have you read Love Knows No LOC by the way till now? नो सर, You नॉट should be reading एग्जैक्टली, this नॉट novel. कम. आप कोई श्योर और बुक सर, पढ़ो आई ना. डेफिनेटली रीड इट. Please do that. Please do that. Did read the review. I liked it. It's kept in my wish list, but I still Okay. have to read it. No, whenever you get time, read that. श्योर सर. मैं इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही थी, बट आई थिंक यू डिड दैट योरसेल्फ. Okay. Okay. मेरे को ये पूछना था कि रीडर्स क्या लें उस नॉवल से. आई मीन व्हाट विल द रीडर्स लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नॉवल, लव नोस नो LOC. बट यू, I think I've already answered it in this one. यस सर, यू ऑलरेडी आंसर्ड इट. Yeah. Thank you, sir, for it. And recently, you have started Ek Kissa Ek Din on Facebook. Yes. Yes. What was the motivational reason behind it? So there is an interesting thing behind that. I mean, कई बार ये होता है कि एज एन ऑथर अर्पित अगर बात करता है तो वो यू आर माई रीजन टू स्माइल, लव नोज नो LOC और उसकी बाकी सारी बुक्स के बारे में बात करता है, और वो ही सारी चीजें बाकी ऑथर्स भी करते हैं. आई सेड दैट आई एम हियर फॉर स्टोरीज, not necessarily means that I have to just talk about my own stories, right? मेरी स्टोरीज के अलावा भी ऐसे लाखों करोड़ों स्टोरीज हैं जिसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, जो मैं जिस बारे में मैं शायद कभी नॉवेल नहीं लिख पाऊंगा, बट द स्टोरी शुड नॉट बी मिस्ड बाय द लार्ज मास्टर्स, राइट? सो एंड दैट इज व्हाई आई न्यू ऑफ सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. कुछ इंटरेस्टिंग किस्से थे जो कभी मेरे सामने हुए, तो जो कभी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हुए, जिस बारे में मैंने खुद ने सुना हुआ था. और हम तो एक ऐसे देश से आते हैं यार जहाँ पे हमारी नानियां और दादियां हमें हमेशा से कहानियां सुना सुना के सुलाती थी. तो क्यों मैंने सोचा कि लॉकडाउन के अंदर व्हेन एवरीबॉडी इज सो नेगेटिव, everybody thinks that they are going to die in few months from now, when typically this India China thing is happening. I mean, negativity is across everywhere. So why not tell some interesting stories which can make people laugh, inspire, or maybe they could motivate the people. So that is why I started this Ek Kissa Ek Din, and I have done 29 episodes by now. मुझे और भी काफी किस्से रिकॉर्ड करने हैं, बट पिछले एक हफ्ते से मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज रियली शैटर्ड बाय दिस न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, एंड आई मीन आई वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एवरीथिंग. आप ये चीज मानेंगे नहीं, लेकिन डे इन डे आउट आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस गाय विद माय फ्रेंड्स, विद माय फैमिलीज, विद माय लव्ड वंस, because I still cannot accept the fact that a person as positive and amazing as him has actually hanged himself up. So इसलिए एक हफ्ते से मैं एक किस्सा एक दिन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाया हूँ, बट लाइफ एज ऑलवेज इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, एंड आई विल डेफिनेटली स्टार्ट रीशूटिंग इट अगेन. सर एक किस्सा एक दिन के कुछ एपिसोड सुने हैं, देखे हैं, एंड इट्स रियली, मतलब हर एक स्टोरी के बाद एक मॉरल होता है जो एवरीवन मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे हमको चाहिए होता है. थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वो सीरीज, एंड आई कैन अश्योर कि जब तक ये लाइफ नॉर्मलसी की तरफ तक नहीं बढ़ती है, व्हेन वी आर नॉट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स, आई विल कीप शूटिंग इट, क्योंकि तब तक मेरे पास में भी थोड़ा टाइम रहेगा, एंड आई विल कीप कंट्रीब्यूटिंग. सर इसी से इंस्पायर हो के मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक पेज स्टार्ट किया है. ओ लवली, व्हाट्स द नेम? इट्स स्टोरी ऑफ यू करके है, and I do love to write stories. Okay, sure sir. Please. So sir, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे फॉर आवर एमेच्योर राइटर्स? लाइक सबको इतना मोटिवेशन तो आता नहीं है, कोई एक पेज लिखा, 2 पेज लिखा, हाफ ए नॉवेल इज रिटन एंड देन दे क्विट.
तो कुछ आप उनको बताना चाहेंगे, उनके लिए आई कोई थिंक मैसेज? मैं उन्हें एक दो बातें कहना चाहूंगा. फर्स्ट वुड ऑलवेज बी कि रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स. बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो अब वो ब्रीड के लोग मत बनिए जो ये कहते हैं कि जो जो मूवी देखने के बाद में ये कहते हैं कि हमने इसकी बुक पढ़ी है. नो, डू नॉट डू दैट. रीड द बुक फर्स्ट एंड देन प्रोबेबली सी द मूवी. बिकॉज जितनी इमेजिनेशन एक बुक रीडिंग खोलती है, आई थिंक कुछ और नहीं है इस दुनिया के अंदर. इवन आफ्टर वॉचिंग अ मूवी यू माइट फील really happy about it, but when you read the entire 400-500 pages of book, you would understand the difference of being a reader and being a viewer. So always read lots and lots of books. I mean, till the time you have not read more than 250 300 different sort of books, do not even think of becoming a writer. अगर आपको सिंसियरली राइटर बनना है तो आप, और अगर आपको रोमांस के बारे में लिखना है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ निकोलस स्पार्क्स, जॉन ग्रीन की ही बुक्स पढ़ें. आप दूसरी थ्रिलर भी बुक्स पढ़िए, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न. तो प्लीज रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स. एंड सेकंड एडवाइस इज स्टे अवे फ्रॉम द ऑथर्स जो ये कहते हैं कि यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने किताब लिखी है, तुम पढ़ लो. तो द पीपल हु themselves do not read anything and have written a book, I cannot even imagine the kind of content that these people might have produced. So I would not like to even put my hands on that book. So if you want to learn something which ultimately could turn you into a writer, read some really good books. Recommendations हर जगह के ऊपर है. Any one of you can always inbox me for any sort of recommendation, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप्स की बुक पढ़ना पसंद करता हूँ. एंड आई वुड ऑलवेज रिप्लाई बैक सेइंग दैट कि अगर आपको ये वाले जॉनर की बुक पढ़नी है तो दिस इज माय रिकमेंडेशन, आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं. तो रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स एंड ऑब्जर्व थिंग्स. कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो हैं ही सही, लेकिन चलते फिरते आप कई बार चीज़ों को ऑब्जर्व कर बैठते हैं. Say that if I am writing a book on a corporate life, I would probably say that we are into the scene. मैं शायद ऐसे ही किसी गूगल मीट का सीन उसके अंदर डालना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू कॉपी द जेस्चर्स जो हम सब लोगों के, जो जिस तरीके से जिब्रान ने बात की, जिस तरीके से टेरेसा ने बात की, जिस तरीके से एकता ने बात की, मैं उन सारे नुआंसेस को अपनी बुक के उस पर्टिकुलर सीन के अंदर डालना चाहूँगा. एंड दैट वुड ओनली कम अप विद द ऑब्जर्वेशंस दैट आई वुड हैव इन माय माइंड. अगर मैं गूगल मीट को बिना यूज किए गूगल मीट के बारे में लिखूंगा तो शायद वो बहुत फेक लगेगा. दैट इज वाई ऑब्जर्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, पुट इट डाउन. एंड वन थिंग विच हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी टिल नाउ, ऑब्जर्व योर ड्रीम्स द मोस्ट. कई बार आपके सपनों में वो बातें आ जाती हैं जो आप रियल लाइफ में सोच भी नहीं सकते. जस्ट राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ समवेयर, एंड मे बी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट योर बुक, you can probably put that scene into your particular book, if at all it fits. So yes, these are my observations and these are my suggestions. Thank you, sir. They are seriously wonderful. I mean, I have been trying to write a short story. I mean, like 10-15 pages story, but I was stuck somewhere. So I Okay, think I can this is now going to help you continue. out. Yes, सपनों sir. से बहुत कुछ Thank you, सीखने sir. की जरूरत है यार. सपनों को देखो, और सुबह तक उठने तक हमें याद नहीं रहते हैं, इसलिए रात को जैसे ही नींद हल्की सी टूटे उसके पॉइंटर्स बना लो. 100% सुबह सपने याद रहेंगे. एंड आई मीन यू वुड थैंक मी फॉर दिस सजेशन यार. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव इम्प्लीमेंटेड इट एंड दे स्टिल थैंक मी फॉर दैट कि सर आपने हमारे बेस्ट ऑफ द सीन्स जो हमारे नॉवेल के होते हैं वो आपने हमें हमारे ही सपनों से ला कर दे दिए. सो आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट. Thank you, sir. This tip is actually very helpful. शायद ये पढ़ाई में भी काम आती है, पॉइंट नोट करने वाली. Sure. Thank you, sir, for these tips. So, when will your next book be out, or can you give us an insight about your next book? So the next book is going to be really interesting as always, but yes, this book is very different, and it should get published by August or September sometime. And I would not like to reveal the topic of the book as of now because it's kept confidential till now, and I would be announcing it mostly by July sometime. So have a look on my page, Instagram and Facebook page, and you'll get to know about it. But I have put all of my life into this book because I mean this is something, I mean you will get to know about it whenever I announce it. आपको पता चलेगा टॉपिक क्या है और मैं क्यों उस बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है सर, कुछ चीज से ना भी रिवील करना सही होता है. maybe I'll tell you guys offline कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, so you'll know, but not during the recorded thing. Sure, sir.
विदाउट रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे. 100%, 100%. Question is, if you could steal credit for any great piece of song, which one would you claim? Sorry, I could not understand your question. What is it? If you If could I steal, if you could steal credit for any great piece of song, हाँ which one would you claim? मतलब कोई अच्छा सा सॉन्ग आपको पसंद है और उसका आपको मिल रहा है कि of course. आपके नाम पर जाएगा. So that would be तेरी मिट्टी by Mr. मनोज मुंतशिर. तो वो इसीलिए क्योंकि आई एम वन ऑफ द few lucky ones जिसने तेरी मिट्टी को रिलीज होने के पहले सुना था. Because I know Manoj ji personally, I have worked with him and he is like an elder brother to me. तो मैंने उस गाने को तब सुना था जब ये रिलीज होने के शायद हफ्ते भर या 15 दिन पहले कुछ. तो तब मैंने जब ये सुना था, वी वर सिटिंग इन अ कैफे, एक चायोस करके मुंबई के अंदर कैफे है. तो मी, मनोज जी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी 3 guys वर सिटिंग ओवर देयर एंड आई वाज राइटिंग वन ऑफ हिज शोज, तो जिसके अंदर मनोज जी खुद एंकर थे. तो उनके लिए स्क्रिप्ट्स मैं वहां पर लिख रहा था एंड ऑफ कोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद मनोज जी एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स आई हैव एवर सीन. आई थिंक मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ. तो उन्होंने ये बताया था कि क्या है ना, मनोज जी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये है कि बातचीत करते करते कई बार वो पोएट्री के अंदर आ जाते हैं और पोएट्री के अंदर आने के बाद में वो ऐसी ऐसी पोएट्री और उसके किस्से आपको सुनाने लग जाते हैं कि आपको सुनने के बाद में लगता है कि यार मतलब क्या हो गया. एंड द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू गेट आउट फ्रॉम इट इज ब्रिलियंट टू अनदर लेवल. तो तभी मनोज जी ने बोला था कि अर्पित, मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है केसरी मूवी का, मुझे बड़ा मजा आया, अब आप ये चीज बताओ. तो मैं वो गाने को सुन रहा था और मतलब आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स एंड द फर्स्ट 2 लाइंस दैट आई हैव हर्ड, मुझे पता था कि दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉरएवर. जैसे संदेश से आते हैं वाज रिलीज बैक इन 1996. वी कैन स्टिल कनेक्ट विद दैट सॉन्ग, राइट? हम में से कितने लोगों का तो उस वक्त तक बर्थ भी नहीं हुआ होगा या फिर जस्ट हुआ ही होगा. मतलब आई वाज व्हाट 5-6 इयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं बहुत ज्यादा यंग था तब. तो मुझे अभी भी याद है कि मैं उस गाने को उस वक्त पे भी फील किया था व्हेनेवर आई हर्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम. और उसके बाद से लेकर आज तक जब भी मैं उस गाने को सुनता हूं तो वो मुझे बहुत कमाल लगता है. एंड द सेम वाज द फीलिंग विद तेरी मिट्टी, ब्रिलियंट टू अनदर लेवल. एंड वो गाने सुनने के बाद में अभी भी आप देख रहे होंगे, it has been played for the Corona warriors, it has been played for Indian soldiers across in different versions. तो वो वाला एक गाना यार जिसको क्लेम करना तो गलत बात होगी, बट आई जस्ट होप दैट मैं उसके जितना 10% भी कभी अच्छा लाइफ में लिख पाऊँ तो लिख पाऊंगा. बट दैट इज वन सॉन्ग दैट आई रियली लव द मोस्ट. सर इट्स वन ऑफ ए बेस्ट चॉइस एक्चुअली. मेरा भी काफी फेवरेट सॉन्ग है एंड क्या बात वो है. सॉन्ग की 2-3 लाइन भी ना मतलब एकदम दिल दहला मुझे देती. सबसे अच्छी लाइन वो वाली लगती है कि तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद अकेला रहता है. तो वो वाली जो लाइन्स है ना, मतलब ब्यूटीफुल टू अनदर लेवल. आई मीन वो उस गाने की एक एक लाइन आपको 10 बार रुला सकती है. सही, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम दिल दहला देती हैं. सर कुछ आप 2-4 लाइंस गाना चाहेंगे सिंस यू आर इंटरेस्टेड लिटिल बिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आप गाने में इंटरेस्टेड हैं. नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ. मतलब मैंने एक म्यूजिक वीडियो डाला जरूर था, बाबरा मन मैंने उसमें गाया था. बट तेरी मिट्टी के लिए मेरी आवाज बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. बट इफ यू वांट मी टू सिंग एनी सॉन्ग आई कैन प्रोबेबली सिंग अ कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम एनी अदर सॉन्ग. ओके श्योर सर, आपको जो पसंद हो उससे गा दीजिए आप. तो मैं कौन सा गाऊं, या कुछ एक दो सजेशन तो दो आप लोग, मुझे समझ में आएगा. सर आप बाबरा मन ही गा सकते हैं. बाबरा मतलब ऑफ, हाँ सर ऑफ कैमरा भी सुन मैं लिया. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गा देता हूँ, उसके 2-3. सर हाँ सर बहुत अच्छा चॉइस है. मुझे पहले बस एक बार लिरिक्स निकालने दो, उसकी 2 से 3 लाइंस निकालने दो, मैं वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा थोड़ा सा. So it goes like this. अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे, तेरे ख्यालों में बीते ये रातें
दिल मेरा मांगे की दुआ, तू सामने हो करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ, पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इट्स मतलब आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेक्ट मेरी नहीं वॉइस कर रहे बिल्कुल थे अच्छी सर। नहीं है और मुझे बिल्कुल धोखे में मत डालिए आप मुझे। सर आपकी वॉइस सीरियसली बहुत अच्छी है। लग नहीं रहा था इतना अच्छा, मतलब आ जाएगा, मतलब माइक और ऐसे नेटवर्क में भी इतना अच्छा साउंड करेगा, तो मतलब रियल में तो और अच्छा होगा सर वो। नहीं, वो मेरे पड़ोसी जानते हैं जिन्होंने अभी मेरी आवाज सुनी। एनीवेज। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है। हम्म। व्हाट्स द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग यू एवर डन? Weirdest वियर्डेस्ट थिंग। things. Many things यार, many things. मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में, मैंने सबसे अजीबोगरीब हरकत क्या की है। So maybe while writing about one of the character, you thought something seriously very hilarious. तो वियर्डेस्ट तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और वियर्डेस्ट का कुछ दिमाग में आएगा तो वो भी बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये की है कि जब मैंने ये व्हेन आई वाज राइटिंग लव नोज नो एलओसी ना, तो एक वक्त पर मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स ज्यादा थे और इंडियन फ्रेंड्स कम थे। So I was constantly in touch with many different sort of people from Pakistan who were added to my Facebook पहले से, and I started speaking with these people over the voice notes, over the WhatsApp call and everything, because मैं ये चाहता था कि मैं जब उस स्टोरी के बारे में लिखूं तो लोगों को लगे कि यार मतलब पाकिस्तान वालों को ये ना लगे जब भी वो पढ़ें कि किसी इंडियन ने लिखी है, और क्योंकि उसको पाकिस्तान पे कुछ लिखना था इसलिए उसने इंटरनेट से 4-5 चीजें पढ़ी और लिख डाली। एंड समहाउ वो चीज मुझे जब डॉन का जब एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू आया था तो उसमें एक सबसे अच्छी लाइन उन्होंने लिखी थी कि व्हेन यू वुड रीड लव नोज नो एलओसी यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी लोगों को ये चीज लगे कि दैट दिस हैज बीन रिटन बाय अ पाकिस्तानी पर्सन, एंड इंडियन पर्सन वुड ऑलवेज फील दैट दिस इज बीन रिटन बाय एन इंडियन। बुक का आधा हिस्सा पाकिस्तान है और आधा हिस्सा इंडिया है, तो वो एक चीज है। तो या दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द वियर्डेस्ट थिंग्स, वो जो हर किसी ने की होती हैं चीजें। स्कूल में पटाखे फोड़े हुए होते हैं, और दूसरे दूसरे लोगों को ब्लैंक कॉल्स किए होते हैं, किसी को डराया हुआ होता है। एंड फ्रैंकली आई कैन नॉट कम अप विथ एनीथिंग इंटरेस्टिंग एज ऑफ नाउ, बट आई एम श्योर मैंने कुछ ना कुछ बहुत उल्टी सीधी चीजें की है लाइफ में, कभी आएगा तो जरूर बताऊंगा। श्योर सर, लेकिन आपने जितना भी कुछ शेयर किया है सर बहुत ही अच्छा, I अमेजिंग था, tell you. मतलब Yeah. So सीरियसली I अमेजिंग। can now recall an incident. Teresa, can you listen? Hello. हेलो। या तो टेरेसा, मुझे एक वियर्ड एक इंसिडेंट याद आया है कि मुंबई के अंदर एक बहुत ही बकवास सी मूवी का प्रीमियर था, जो होता है ना यस इसके सर। अंदर प्रीमियर में इनवाइट करते हैं लोगों को, कुछ सेलिब्रिटीज आते हैं, कुछ क्लोज नेटवर्क वाले लोग आते हैं। सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स आल्सो इनवाइटेड मी ओवर देयर, तो आई वाज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पर्सन टू अटेंड दैट पर्टिकुलर मूवी का प्रीमियर। इतनी बकवास मूवी थी वो, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं वहां पर खड़ा हुआ था, एंड देन आई वाज आई स्टिल कैन रिमेम्बर कि वहां पे कांच के ग्लासेस रखे हुए थे, एंड मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का उनको बोला था। तो व्हाट हैपेंड वाज वहां पे पॉपकॉर्न रखा था और वहां पे ये ग्लास रखे थे, तो पॉपकॉर्न उठाने के चक्कर के अंदर, और मैंने अपना ग्लास उठाया, जैसे ही मैंने टर्न किया मेरी कोहनी से वहां पे 3 से 4 ग्लासेस गिर गए सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर वन ऑफ द बेस्ट इन टू द इंडस्ट्रीज। उनके सामने वो मेरा इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि मैंने ग्लास फोड़ दिए और वहां पे सडन साइलेंस था। मतलब आप सोचो कि इंडस्ट्री के जस्ट टॉक अबाउट द बिगेस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड दे आर देयर, और वो देख रहे थे कि मैंने उनकी आंखों के सामने अपनी कोहनी से ग्लास तोड़ के 5-7 नीचे गिरा दिए हैं। तो वो मतलब मैं उतना ही अपने आप को मनहूस उस वक्त पे फील कर रहा था जैसा कि काजोल थी ना कभी खुशी कभी गम के अंदर, वो जहां जाती चीजें तोड़ देती थी। तो आई वॉज रियली एम्बेरेस्ड, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, नजरें बचा के कैसे तो भी चल दो यहाँ से।
So that was definitely a very weird situation and a bit common too. And whenever we are in this kind of situation, we don't know where to look, what to do, where to go. And lastly, our face definitely gives off a very mixed emotion. Thank you, sir. Thank you for every little piece of incidents, advices, and memories you shared with us. The advices are life saving for a writer and a storyteller. It was a very interactive session. Thank you, sir. Thank you for being here with us today. With all of you guys, I mean, really बहुत कम ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें आधा एक घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता. But it was really amazing and some interesting questions you guys came up with. So thanks to your association, thanks to TEC and each one of you. So lovely guys. I mean, hope to be in touch with all of you. Yes, sir. Thank you, Arpit, sir. Thank you, everyone, for watching this episode of Talks with TEC. If you enjoyed this video, do like and subscribe to our channel. Also, to keep yourself updated with the new episodes, follow us on our social media handles. You'll find the links in the description below. See you in the next episode. Till then, take care and stay positive. Bye bye.